Good morning, dear students. Welcome to my class. Today we will discuss some very important questions based on your chapter motion. Students, ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा. क्वेश्चन नंबर 1. इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी? क्या डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है? आंसर इज नो. वाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड द वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. चेंज द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी हमें मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, देन हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई बाई 18/5. 5 4 जा 20, 4 मल्टीप्लाई बाई 18 एंड 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर. दिस विल बी योर आंसर. Next question. Name the physical quantity which give us an idea of how slow or fast a body is moving. उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जो हमें ये बताती है कि कोई एक ऑब्जेक्ट कितना तेज या कितना स्लो मूव कर रहा है. Then the answer will be speed. स्पीड हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के फास्ट या स्लो होने के बारे में बताती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. What is the other name of negative acceleration? So we know that the other name of negative acceleration is retardation. Or you can say that deceleration. ये कब होता है? When velocity decreases with time. जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो तब बॉडी के अंदर रिटार्डेशन डेवलप होता है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट रिमेन कांस्टेंट इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन the magnitude of speed remain constant during uniform circular motion. So answer will be speed remain constant in a uniform circular motion. Then question number 6. What is the unit of velocity? So we know that the formula of velocity is displacement upon time. Displacement upon time. Velocity is equals to displacement upon time, and the unit of displacement is meter, the unit of time is second, then the unit of velocity will be meter per second. Now we are moving to our next question, question number 7. What does the slope of velocity time graph indicates? This is our time on the x-axis, this is the velocity on y-axis, and this is our graph. Then this graph indicates acceleration. This graph remains acceleration because from here we will get change in velocity, from here we will get the change in time, and acceleration will be change in velocity upon change in time. This will be our answer. Next, question number 8. Give two examples of vector quantity. Students, ध्यान रखिएगा, vector quantities are those quantity which have magnitude plus direction. जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उसको आप क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट कैन बी एनी न्यूमेरिकल वैल्यू 5, 10, 0.5 एक्सेट्रा. एंड डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट,
north, south, or a point A to point B to point C. So what are the two examples of vector quantity? First is force. Force is an example of vector quantity. Second is displacement. Displacement is also an example of vector quantity. Third is acceleration. Question number 9. Write down the second equation of motion. The second equation of motion is S is equals to ut plus half at square, and here S stands for distance, u means initial velocity, t is time, a is acceleration, and t is again time. Question number 10. What do the odometer measure? Odometer measure the distance. Odometer measure the distance. Question number 9. Name the physical quantity whose SI unit is meter per second square. Then the answer will be acceleration. एक्सेलरेशन कैसे आता है वो देखेंगे. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम का होता है सेकंड. ये सेकंड नीचे आ जाता है, देन इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस तरह आपका ऐसा यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट चेंजेस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ चेंज होती है? ध्यान से देखिए. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक having radius r, then at this point A the direction will be towards tangent. At this point B direction will be towards tangent. At this point direction will be towards tangent. तो आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती है. सो देन व्हाट चेंजेस इन सर्कुलर मोशन? आंसर इज डायरेक्शन. डायरेक्शन चेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आगे के एग्जाम्स के लिए. विच कैन बी जीरो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में से कौन जीरो हो सकता है? देन आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. लेकिन ये कैसे ज़ीरो हो सकता है? ध्यान से देखिए. अभी आपको हमने सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल दिया था. सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r and it starts its motion from A and then again it reaches at point A. Then its initial position and the final position is same, then the displacement will be 0. Question number 14. Give two examples of uniform circular motion. Then the first example will be the motion of electron around the nucleus of an atom. किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करते हैं. एंड द सेकंड एग्जांपल विल बी मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड विद ए स्ट्रिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप. अगर आप किसी धागे में एक पत्थर को बांध के उसको घुमाते हैं, देन दिस मोशन विल बी ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देन क्वेश्चन नंबर 15. Under what condition distance and displacement are same? If an object moves on a straight line, then the distance and displacement will be same. For example, the distance between A and B is 15 meter, then displacement will also be 15 meter. Question number 16 को देखते हैं.
it is possible for something to accelerate but not change its speed if it moves. क्या है पॉसिबल है कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तो हो रहा हो लेकिन उसकी स्पीड में कोई चेंज ना हो? यस, इट इज पॉसिबल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in which the speed remain constant but direction continuously changing. That is why it produce acceleration. Answer will be uniform circular motion. ये possible है. Question number 17. The slope of distance time graph indicates distance y-axis पर, time x-axis पर, and this will be our graph. Then this slope will represent what? ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दिस इज अवर डिस्टेंस, दिस इज अवर टाइम, देन डिस्टेंस अपॉन टाइम. बताइए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी स्पीड. योर आंसर विल बी स्पीड. इट विल रिप्रेजेंट स्पीड. क्वेश्चन नंबर 18. ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर. एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है. द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ हाफ सर्कल वुड बी. यहाँ से देखिए ये एक इसका हाफ सर्कल होगा. पॉइंट ए से पॉइंट एक्स तक जाने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक. देखिए अगर वो डिस्प्लेसमेंट की बात करता है देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी डायमीटर एंड द डायमीटर विल बी 2r. सो द आंसर विल बी 2r डिस्प्लेसमेंट. और अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस में क्या आ जाता? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाती है? πr. क्वेश्चन नंबर 19. डिस्प्लेसमेंट इज ए वी नो दैट, वेरी गुड, वेक्टर क्वांटिटी. सभी बच्चों को पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है. एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा. एक्सेलरेशन इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्यों कहते हैं हम ऐसा? बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. एंड इट विल बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज मेजर्ड इन इट्स यूनिट्स विल बी. वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की होती है सेकेंड. देन द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड square. Thank you so much for watching this video and don't forget to like, subscribe this channel.